ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، خیریت سے ہیں؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں زبیر رضا برکاتی بول رہا ہوں حضرت علی گڑھ سے۔ علی گڑھ سے؟ اچھا صاحب بتائیے۔ جی حضرت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، خواجہ غریب نواز اور حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے مجھے کچھ پوچھنا تھا حضرت۔ میں نے اکثر کتابوں میں چھان لیا، وہی پرانی یہی ساری کتاب ہے تعمیر ادب، ان میں تو یہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضرت، صدیق اکبر اور خواجہ غریب نواز دونوں سیم ایک ہی طریقے سے بیٹھے کے کھانا کھاتے تھے؟ اب یہ کس نے دیکھا ہے؟ خواجہ غریب نواز بہت بات کے ہیں۔ خواجہ غریب نواز اجمیری تو بہت بات کے ہیں۔ بعد کے 600 سال بعد ہوئے نا حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری۔ 600 سال بعد؟ ہاں تو دونوں یعنی ایک طریقے سے کھانا کھاتے ہیں؟ ایک طریقہ معلوم نہیں کیا مطلب، کیا پوچھنا چاہ رہا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ہیلو ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے حضرت میری؟ ہاں آپ کی نہیں آ رہی تھی میرے پاس۔ ہاں تو یہ بتائیے پہلے حضرت، خانہ کعبہ جو ہے پر کا مسئلہ بعد میں، یہ خانہ کعبہ کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے بالکل بلا شک و شبہ ہو جائے گی۔ شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کا جو امام ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اور حضرت یہ لیکن اعلیٰ حضرت کی جو کتاب وہ ان کی اشرف علی تھانوی کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے، کون سی ہے؟ ایک کتاب ہے اشرف وہ ایمان کے نام سے ہے کوئی کتاب، ایمان، ہاں تقویت الایمان، ایک کتاب ہے، اس پہ صفحہ نمبر 53 پہ ہے، اور حفظ الایمان ہے، حفظ الایمان وہ ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اپن کو ان باتوں سے کیا مطلب؟ جو پرانی گڑی مردے نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ ان کتابوں کو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، نہ کہیں وہ ملتی ہیں۔ کوئی باتیں پھیلا کے پبلک میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ابھی علی گڑھ میں تلاش کرو تو دیوبند والوں کے پاس بھی نہیں ملے گی وہ کتاب حفظ الایمان، 10 بھی نہیں مل پائیں گی پورے علی گڑھ شہر میں۔ اچھا، تو کائے کو ان باتوں کو پھیلا کے گندگی پھیلانا کہ صاحب ایسا کہ یہ لکھا ویسا لکھا تو قرآن کا ترجمہ حضور نے لکھا ہے کوئی سی کتاب میں ہے؟ کیا اگر ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو کہاں پڑھیں؟ سب کا پڑھو، جس کا سمجھ میں آیا سب کا پڑھ لو۔ ہمارے گاؤں کے امام صاحب نے لکھا نا، انہیں ہم سب سے اچھا مانگتے ہیں۔ شاہ ولی پہلے کھانا کھا لو، ٹھیک ہے؟ حضرت یہ بتائیے کنز الایمان پھر کس کا پڑھیں ہم؟ جو سمجھ میں آیا سب کا ترجمہ پڑھ لو، ان کا بھی پڑھو، ان کا بھی پڑھو، سب کا پڑھو، جو سمجھ میں آیا مان، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کے مرید بیت کیوں توڑ رہے ہیں آپ سے؟ توڑنے تو ہمیں سے کیا مطلب؟ کیوں؟ سب توڑ دیں بیت۔ کوئی بھی انسان اگر کسی کو چھوڑے گا تو اس کی غلطیوں کی وجہ سے تو چھوڑے گا۔ باپ اگر اولاد کو چھوڑے گی کیوں؟ کیونکہ اس کی اولاد غلط چل رہی ہے۔ جو بھی خانہ کعبہ کے امام کو اگر مسلمان نہیں مانتا، ہمیں ایسے مرید کی ضرورت ہی نہیں ہے، توڑ دے بیت کہیں بھی جائے۔ جو مسجد نبوی کے امام کو مرید مسلمان نہ مانے، حسین کو جس نے شہید کیا تھا وہ ایسے مرید کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں بھی جا کے مرید ہو جائے۔ حضرت امام حسین، اور جو امام حسین علیہ السلام سے بڑا اعلیٰ حضرت کو مانے، امام حسین کو علیہ السلام نہ کہے، اور امام حسین سے زیادہ چرچا اعلیٰ حضرت کا کرے، حضرت امام زین العابدین سے زیادہ چرچا اعلیٰ حضرت کا کرے، حضرت امام باقر سے زیادہ چرچا اعلیٰ حضرت کا کرے، حضرت امام جعفر سے زیادہ چرچا اعلیٰ حضرت کا کرے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے زیادہ چرچا اعلیٰ حضرت کا کرے، حضرت امام علی رضا سے زیادہ چرچا کرے، حضرت امام تقی سے زیادہ چرچا کرے، حضرت امام نقی سے زیادہ چرچا کرے، حضرت امام حسن عسکری سے زیادہ چرچا کرے، تو ایسے مریضوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور جو فاضل بریلوی کو حضور بھی کہے، اعلیٰ حضرت بھی کہے، رضی اللہ عنہ کہے، ایسے مرید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو صحابہ کو حضرت کہے، ابو بکر صدیق کو حضرت کہے، فاروق اعظم کو حضرت کہے، عثمان غنی کو حضرت کہے، شیخ خدا کو حضرت کہے، آدم علیہ السلام کو حضرت کہے، موسیٰ علیہ السلام کو حضرت کہے، یوسف علیہ السلام کو حضرت کہے، عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت کہے،
तमाम नबियों को हजरत कहे, फाजिल बरेलवी को हुजूर भी कहे, आला हजरत भी कहे, रदियल्लाहु कहे। तो ऐसा ऐसा मानने वाला मुरीद जाए, कहीं भी जाके मुरीद हो जाए, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझाए ना उन्हें, फिर हमें उसी मुरीद की जरूरत है जो 5 टाइम की नमाज पढ़े, हलाल रोजी खावे और सबको मुसलमान समझे। देवबंद वाले भी मुसलमान हैं, बरेली वाले भी मुसलमान हैं। जो इन सबको मुसलमान समझे तो वो हमारा मुरीद है, नहीं जो कहीं भी जाके मुरीद हो जाए। क्या ख्याल है? मैं तो खैर इतना आलिम नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, मुहद्दिस नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा बरकाती पैगाम अपने नाम के, बरकाती नाम लगा लेता हूँ अपने नाम के आगे, बस इसी का फजलो करम में। ये अच्छा, आप अपने पीर से पूछने जाओगे कि मदीने शरीफ के इमाम को क्या मानते हो, काबे शरीफ के इमाम को आप क्या मानते हो? जरा हमें ऑडियो में जवाब दें इसका। मैं तो आपको भी कुछ ना मानना और न किसी को। मैं तो मेरे माँ बाप हैं सबसे ज्यादा। तो आप फिर मुरीद कैसे बने? देखो एक बात सुनो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है कि नहीं है? यूनिवर्सिटी जाए तेल लगाने, मुझे सिर्फ इतना बताओ हजरत। नहीं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 25 मस्जिदें हैं। अब 25 मस्जिदें किस किस की हैं, कौन कौन इमामत कर रहा है वहाँ पर? अब हजरत उन 25 की तनख्वाह मैं नहीं दे रहा और न मैं 25 जगह नमाज पढ़ने जा रहा। मैं गौसे पाक तो है ना कि एक दिन में 72 के यहाँ दावत खा लूंगा। एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ, अपनी पीपल वाली गली में। और इमाम बहुत अच्छे हैं और खूबसूरत भी हैं और इल्मदार भी हैं और नेक भी हैं और परहेजगार भी हैं। नाम तो मुझे ध्यान में ना, उनका सरताज कादरी बरकाती नाम है, मालूम है। वो मसला कि आला हजरत को मानते हैं। उस मस्जिद में रात दिन देवबंदियों के पीछे लड़ाई होती है, लेकिन उस दिन से वो आए, उन्होंने ऐसा समझाया देवबंदियों को, सुन्नियों को बैठा लेके कि सब उनके हाथ चूम रहे हैं। अब हजरत कहे उन्हें, अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप जिसने करबला में इमाम हुसैन को शहीद किया था वो कौन थे? यजीदी थे, यजीदी। तो यजीदी वो मुसलमान तो थे ना। ये तो फाजिल बरेलवी ने से पूछो, फाजिल बरेलवी ने क्या लिखा है? मत करो, पहले मसला बताओ, वो मुसलमान थे या ना? ये बताओ, फाजिल बरेलवी ने उनको काफिर क्यों नहीं कहा यजीद को? हजरत फाजिल बरेलवी ने काफिर नहीं कहा यजीद को। हैं? फाजिल बरेलवी ने आला हजरत ने काफिर नहीं कहा है। तुम काफिर कहोगे ना, वो तो आला हजरत ने कहा, तो तुम आला हजरत की बात क्यों मान रहे हो? नहीं, तुम बताओ ना, आला हजरत की बात को मानोगे कि नहीं? तो कहा आप सबको माना, आला हजरत ने देवबंदियों को भी काफिर कहा है। हाँ, क्या हो गया? आला हजरत ने देवबंदियों को भी काफिर कहा है। सबको कहा है, सबको कहा है, सबको सबको हाँ, सबको, सब देवबंदियों को काफिर कहा है। तो फिर तो यूनिवर्सिटी में 50,000 लड़के पढ़ते हैं, सब काफिर हो जाएंगे। अरे इस हिसाब से तो पूरा हिंदुस्तान काफिर हो जाए, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, आप आला हजरत की फतवे को मानते हो? इसको हमारा ईमान मजबूत है। हम आला हजरत के फतवे को मानते हो आप? बहुत अच्छी तरीके से मानता हूँ मैं तो आला हजरत। अगर उन्होंने जैसे देवबंद वालों को सबको काफिर कहा, आप मानते हो? मैं तो तुम्हें मानता हूँ, मैं तुम्हें मानता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे आलिम हैं, लेकिन इल्म पता नहीं कहाँ जा रहा है आपका। नहीं, ये बताओ, आप देवबंद वालों को सबको काफिर मानते हो? मैं देवबंदियत की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी सबको। अभी आपने कहा सबको काफिर कहा है। तो मुफ्ती अब जो वहाँ के खालिद साहब हैं, शहर मुफ्ती अलीगढ़ के, उन्हें आप क्या मानते हो? देवबंदी हैं? मैं जानती ना हूँ, तो मैं जिसे जानता हूँ। चलो वो मैं जानता हूँ, वो देवबंदी है, जहाँ मस्जिद के इमाम है। अगर आप देवबंदी कह रहे हैं तो वो काफिर हैं आला हजरत के फतवे से। और झगड़ा हो जाएगा साहब अलीगढ़ में, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। ऐसी फसादी बातें मत किया करो। लड़ाई जैसे लड़ना है, नहीं, इससे झगड़ा हो जाएगा। 10% वहाँ पर बरेलवी हैं, 90% देवबंदी हैं, बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाएगी, इससे फसाद पैदा हो जाएगा। क्या फायदा ऐसी बातें करने से? और यूनिवर्सिटी में सब देवबंदी हैं, 95-99% वो सब इधर सुना, हमें सब भड़क उठेंगे और 1-2% वहाँ बरेलवी पढ़ते हैं, उन सब पे चढ़ाई कर देंगे। यार तुम्हारे मौलवी लोग क्या क्या बकते हैं, क्या क्या कहते हैं, काफिर काफिर काफिर। लेना देना ही क्या है हजरत, ये बताइए हमें, लेना देना क्या देवबंदियों से? देखो आप ये बताओ हजरत, हमने कहा हमने देवबंदी नहीं, ये बताओ अभी आप हिंदुस्तान, वो अलीगढ़ में कितनी मस्जिदें हैं? कितनी होंगी सब मिला के? अरे मैं देखो मस्जिद की बात नहीं कर रहा, पहले मेरी बात सुनो। नहीं, अलीगढ़ में कितनी मस्जिद है सब मिला के? अब मैंने बनवाई तो है ना, मुझे पता हो। नहीं चलो खैर, ये रजानगर में कितनी मस्जिदें हैं? एक मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने। नहीं, कितनी मस्जिदें मानते हो आप अलीगढ़ में? यूनिवर्सिटी में मस्जिद है कि नहीं है? हजरत मैं आपसे दुनिया भर की बात नहीं पूछ। यूनिवर्सिटी में मस्जिदें हैं कि नहीं है? यूनिवर्सिटी की मस्जिदें हैं कि नहीं?
यूनिवर्सिटी मस्जिद देखो मैंने ना कोई बनवाई ना मैं किसी में चंदा नहीं वो मस्जिद है तो मानते हो कि नहीं मानते? आप उसको मस्जिद मानते हो? मस्जिद यूनिवर्सिटी में एक मस्जिद देखी है बस वो वाली, वो तो उसमें मैं नमाज पढ़ी ना कभी तो मुझे पता हो, और ना मैं गया कभी नहीं उसमें। तो वो तो देवबंद वाले इमाम है वहाँ पर। तो तुमने पढ़ी होगी वह सब, तुम्हें ज्यादा नहीं मालूम। नहीं, अब आप उस मस्जिद के इमाम को क्या मानते हो जो यूनिवर्सिटी का मस्जिद का इमाम देवबंद वाला है? पहले ही खड़ा होता है, अंगूठा नहीं चूमता है। इमाम मानते हैं? नहीं क्या मानते हो? मुसलमान मानते हो कि नहीं? इमाम। नहीं मुसलमान मानते हो कि नहीं? आला हज़रत के फतवे थे, देवबंद वाला है वो तो। आप सामने से देख लेंगे, मुसलमान लग रहा हो तो मुसलमान बता देंगे, हिंदू लग नहीं रहा हो अभी तो आपने कह दिया काफिर है। बता देंगे। अभी आपने काफिर कहा था कि सब देवबंदी काफिर हैं। आला मैंने जब सब देवबंदी काफिर हैं तो फिर ये हिंदुस्तान की आबादी कितनी बताओगे? 30 करोड़ बताओगे कि 10 करोड़ बताओगे? आला अलीगढ़ में अगर सब देवबंद वालों को आप काफिर मानते हो अब पहले तो मेरी फिर आपकी मस्जिदें हो गई वहाँ पर 50 उनकी हैं, वहाँ 500 देवबंद वालों की, और पहले उनकी आबादी है लगभग 5 लाख और आपकी होगी 20-25 हजार। अब वो सारे के सारे भड़क जाएंगे जितने भी हैं मेरी बात सुनो यार। पहले। 4,80,000 लोगों को ये आदमी काफिर बता रहा है हालात के फतवे से, और यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों को काफिर मान रहा है, और शहर मुफ्ती को भी काफिर मान रहा है। तो वो तो बहुत खतरनाक झगड़ा हो जाएगा अलीगढ़ में। तो तुम झगड़ी वाला करवाओ और क्या करोगे, ये नहीं वीडियो नहीं, ये बताओ इससे झगड़ा पैदा करोगे आप मुसलमानों में? और लड़कियां शादियां कर रखी हैं, एक दूसरे से रिश्ते कर रखे हैं, देवबंदियों ने सुन्नियों को दे रखी हैं, सुन्नियों ने देवबंदियों को दे रखी हैं। आप पहले तो अब ये बताओ जो लड़कियां देवबंदियों को दी हैं सुन्नियों ने, वो क्या हुई साहब? वो क्या हुई? रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? निकाह हुआ कि नहीं? आप देखो सबसे ज्यादा लड़ाई जो अगर करवाने वाले आदमी अगर पाए गए हैं आज के दौर में, तो एक सबसे ज्यादा मुल्ला अतर कादरी, दूसरा वसीम रजवी, तीसरा ये एक और। तो आप लोग ऐसे वीडियो बनाते तुम ये बताओ कि तुम अपने पीर से किससे मुरीद हो? महाराजा से? हैं? महाराजा शहीद से किसके मुरीद हो? मैं तो अभी किसी से मुरीदी ना हुआ हूँ। फिर बरकाती क्यों लगा रहे थे? मैं अपनी अम्मी के कहने पे चलता हूँ। तो बरकाती क्यों लगाया था? बरकाती बरकाती निस्बत, मैं अपने नाम, मेरा नाम अच्छा लगता है बरकाती लगा के। तो फिर जब बरकाती लगा रहे हो तो वहाँ से निस्बत भी नहीं रखते तुम महाराजा शरीफ से? निस्बत तो रखता हूँ, दिल से निस्बत रखता हूँ, आला हजरत से दिल से निस्बत रखता अच्छा, हूँ। अपनी अम्मी से पूछो कि अम्मा हम सब देवबंद वालों को काफिर माने, कैसा रहेगा? अम्मी से भी पूछ के आओ पहले। जब अम्मा की बात मानते हो तो अम्मी से भी पूछो। ख्वाजा गरीब नवाज की फातह लगती है, वैसे पाक की नहीं, फातह। ये पूछो अम्मा से कि अम्मा मैं सबको देवबंद वालों को काफिर मानता हूँ जितने अलीगढ़ में हैं, शहर मुफ्ती है और यूनिवर्सिटी का इमाम है। तो अम्मा से जरा पूछो। आप कह रहे हो ना मैं अम्मा की बात मानता हूँ, तो अम्मा क्या जवाब देती है इस बारे में? मेरी अम्मा को जब उन्हें पता ही ना, मेरी अम्मी ने कहते थे लल्ला किसी से कुछ लेना देना ना, 2 रोटी हलाली की खाओ और कमाओ। काय कोई तो बकबक कर रहा हो कि ये काफिर है वो काफिर है, देवबंदी काफिर है? तुमने कहलवाई। मैं तो ये बताओ खाने काबा के इमाम को क्या मानते हो? मैं इनको जब जानती ना तो बताऊंगा कहाँ से जी, नहीं बताओ। अभी तो तुम क्या देवबंदी सब काफिर है आलात ने लिखा है, तो आलात को ज्यादा मानते हो, अल्लाह रसूल को नहीं मानते तुम? मैंने क्या कहा? अल्लाह रसूल के ऊपर ईमान लाए हो कि आला हजरत पर ईमान लाए हो? साहबा किराम को तुम चर्चा नहीं करते हो, न कभी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का करते हो, न कभी हजरत इमाम बाकर का करते हो, न कभी हजरत इमाम जाफर का करते हो। अभी ये बताइए, अब बदायूं करीम में बदायूं वाले तो सुन्नी है ना, बदायूं वाले आला हजरत को नहीं मानते, तो तुम उन्हें क्या मानते हो बदायूं वालों को? सुनो पहले तो मेरी एक बात का जवाब दो आप। नहीं बताओ बदायूं वालों क्या मानते हो? वो भी आला को नहीं मानते? तुम 10 सवाल करोगे ना तो मैं 10 के जवाब दूंगा। नहीं ये बताओ आला हजरत को नहीं मानते, उन्हें क्या मानते हो? बदायूं वाले सुन्नी है वो? सुननी है, लेकिन आप ये बताइए नहीं कि उन्हें क्या मानते हो बताओ पहले। वो आलत को नहीं मानते। आपसे मैंने करबला का बयान पूछा। अरे पहले ये बताओ बदायूं वालों को क्या मानते हो? भाई वो सुन्नी है, सलाम पढ़ते हैं, लेकिन आलत को नहीं मानते। मैंने ये ना पूछा है तुमसे कुछ, और मैं भाई तुम कह रहे हो ना आला हजरत मसले के आलत का नाम लेता हमारा इमाम। अब वो बदायूं वाले नहीं लेते, मसले के आलत का नारा भी नहीं लगाते, मना कर देंगे। अभी आप जाओ खानकाह में बदायूं, मना कर देंगे, यहाँ नारा नहीं लगेगा मसले के आलत का। मुझे देखो ये भी ना पता कि नहीं तो अब क्या मानते हो भाई? बदायूं वालों को वो आलत को नहीं मानते, क्या मानते हो? मुसलमान। तो बस वो आलत को तो मानते ही नहीं है। तो ये बताओ जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया वो कौन है? नहीं ये बताओ कि आप आलत को जो नहीं माने, आप कह रहे थे, आप क्या क्या कह रहे थे? अब वो बदायूं वाले नहीं मानते। अब मैं बताऊंगा, उसको बताऊंगा, पहले मेरी बात का जवाब दे दो। आप बड़े अब ये बताओ यूनिवर्सिटी में 25 मस्जिदें, सब में इमाम देवबंदी हैं, तो वहाँ नमाज होगी कि नहीं होगी? देवबंदी जाए अपनी तेल लगाने, पहले ये बता दो। ये बताओ नमाज होगी कि नहीं होगी? ना होगी। यानी 2500 मस्जिदों में नमाज नहीं होगी? मुझे नहीं पता, मेरे ही नहीं तो कह रहे थे नहीं होगी, अब कह रहे मुझे नहीं पता। एक बात करो ना, ये बताओ 25 मस्जिदें देवबंदी इमाम है यूनिवर्सिटी के, तो उसमें 25,000 जो लड़के पढ़ते हैं उनकी नमाज हो रही है कि नहीं हो रही?
देवबंदी के पीछे मेरी नमाज नहीं होगी, नहीं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उनकी नमाज हो रही है कि नहीं? मेरी नहीं होगी, बस नहीं, उनकी नमाज होगी कि नहीं होगी? मेरी नहीं होगी। अब मैं खुदा तो है ना कि मैं लिखूंगा उनकी, चल इसकी राय, नहीं, जब तुम्हारी नहीं हो रही तो उनकी कैसे हो जाएगी? जो नमाज पढ़ा उनकी कैसे हो रही? इनके पेपर के एग्जाम के वो नहीं दे रहा हूँ नंबर कि इसकी होगी और इसकी होगी। नहीं, उनकी कैसे हो रही है? जब आपकी नहीं हो रही तो उनकी कैसे हो रही है? जब तुम मान रहे हो कि उनके पीछे मेरी नमाज नहीं होगी तो उनकी कैसे हो रही है जो पढ़ रहा है? अब जो बताओ तुम किसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, जो नहीं, बताओ। ये बताओ, तुम कह रहे थे देवबंद वाले मुसलमान नहीं मान रहे थे, तो आप अब जब देवबंद वालों की मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, अलीगढ़ में जितने भी जामे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं उनकी नमाज हो रही है कि नहीं हो रही? और जो हज करने जा रहे हैं देवबंद वाले, इनका हज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो देवबंद वाले हज करने जा रहे हैं इनका हज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले चलो वो बात बता रहा हूँ। नहीं, ये बताओ इनका हज हो रहा है कि नहीं हो रहा देवबंद वालों का? न हो रहा, नहीं बताओ ना, देवबंद वालों का हज हुआ कि नहीं हुआ? ना हुआ, नहीं हुआ है? ना। जोर से बोलो ना कि हज नहीं हुआ, सीधे सीधे बोलो। क्या पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। नहीं, देवबंद वालों का हज हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। और न तुम्हें हज नसीब होएगा, नहीं, उनका हज हुआ कि नहीं, जो देवबंद वाले हज करने जा रहे हैं? और न तुम्हें हुजूर बुलाएंगे। अरे ये बताओ हज हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा नहीं होएगा। अरे ये बताओ देवबंद वालों का हज हुआ कि नहीं? पहला जी बताओ, जिसने इमाम हुसैन को शहीद, जिसने देवबंद वालों के पीछे वो नमाज पढ़ी खाने काबा में, उनकी नमाज हुई कि नहीं हुई? मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे, खाने काबा के इमाम के पीछे, जो वो मुसलमान है या नहीं जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया करबला अरे में। ये बताओ, ये पहले ये बताओ, जो खाने काबा का इमाम है, मस्जिद नबवी का इमाम है, इसके पीछे नमाज हुई कि नहीं हुई सबकी? हुसैन को शहीद किया वो मुसलमान है या नहीं? अरे तुम पहले ये बताओ। ये बताओ, वो जिसने मुसलमान इमाम, अरे वो कोई आज के दौर के लोगों ने शहीद नहीं किया, उस जमाने के लोग हैं। तो अब मुझे उसी जमाने के लोगों का बता दो। पहले अभी हाल लेटेस्ट की बात करो आप, हैं? लेटेस्ट की बात करो, लेटेस्ट। उसी जमाने के मुझे बताओ कि वो मुसलमान है या वो नहीं। जो गुड्डू है वहाँ, गुड्डू वगैरह को जानते हो? अलीगढ़ के जो गुड्डू वगैरह हैं। आला हजरत ने किताब लिखी है, आज के जमाने में मानो आला हजरत की किताब का मसला समझ लिया आपने? क्या? 1400 साल पहले की ना मान ले तो अभी की मानो। आला हजरत ने अभी इसी जमाने की मानो, इसी जमाने में आला हजरत ने किताब लिखी है। इसी जमाने का आला हजरत है, कोई पुराने जमाने का आला हजरत नहीं है। इसी जमाने के हुजूर तादो शरिया है, इसी जमाने के हुजूर असजद मियाँ है, इसी जमाने के हुजूर अमान मियाँ है, इसी जमाने के हुजूर अमान मिल्लत है, इसी जमाने के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, इसी जमाने के हुजूर अख्तर रजा खान है, इसी वो सबसे बड़े सहाबी कौन है? सबसे बड़े सहाबी इसी जमाने के सबसे बड़े साहबी आप बताएंगे? नहीं, तुम बताओ ना। सबसे बड़े सहाबी कौन है? आला हजरत की किताब में देखूंगा, लिखूंगा कौन है। अच्छा, यही नहीं मालूम अभी सबसे बड़े सहाबी कौन है? यानी आला हजरत को जानते हो, सबसे बड़े सहाबी को नहीं जानते हैं? सबसे बड़े सहाबी का नाम नहीं जानते? हाँ, उनका नाम तो मालूम है, लेकिन अच्छा बड़े साहबी जो साहबी अल्लाह के रसूल के साहबी, अच्छा उनके नाम तो होगा ना। सबसे बड़े साहबी कौन है? मेरी अम्मी बताती हैं, मेरी अम्मी बहुत किताब पढ़ती है। मेरी अम्मी बताओ ना, सबसे बड़े साहबी कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और दूसरे नंबर के हजरत उमर फारूक। अभी तू अपने बापों को कह रहा था हुजूर अजद मियाँ, हुजूर अमान मियाँ, इनको हुजूर कह रहा था। और जिनका मर्तबा अल्लाह के रसूल के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनको तू हजरत कह रहा है। फारूक आजम को तू हजरत कह रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? इधर सुनो, तू अमान मियाँ को हुजूर कह रहा है, तू अजहरी मियाँ को हुजूर कह रहा है, ताजुल शरिया कह रहा है। अभी मैंने तुझसे पूछा सबसे बड़े साहबी कौन है, तूने कहा हजरत अबू बकर, कहा कि नहीं कहा? तूने कहा हजरत उमर, और तूने अमान मियाँ को क्या कहा? हुजूर अमान मियाँ। उन्हें हजरत क्यों नहीं कहा? तूने अजहरी मियाँ को हजरत क्यों नहीं कहा? यानी तुम लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि आज 90% मुसलमान बेजार हो रहा है कि यार ये कितना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो मसला पूछ रहा हूँ, 98% देवबंदी है, 98% को तू काफिर मान रहा है। अगर कल को झगड़ा हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आएगी, तेरे ऊपर आएगी कि यार ये सबको काफिर मान रहा है। एक भी मस्जिद में नमाज नहीं हो रही। शहर पेश इमाम को भी तूने काफिर करार दे दिया, वहाँ के जो बहुत बड़े काबिल मुफ्ती हैं, जबरदस्त तालीम है मुफ्ती खालिद साहब, जो जामे मस्जिद के इमाम है, अलीगढ़ के शहर मुफ्ती हैं, उनको भी तू काफिर कह रहा है। तो तू कह रहा है आला हजरत के फतवे से सारे देवबंदी काफिर। तो तेरे फतवे के साथ 90% जो अलीगढ़ में रहते हैं नऊज़ बिल्लाह देवबंदी, सबके सब काफिर हो जाएंगे। और फिर जो खुर्जा में रह रहे हैं सब काफिर हो जाएंगे। और भी जितनी भी जगह देवबंद वाले हैं, मेरठ में और ये बुलंदशहर में, सबके सब तेरे फतवे से काफिर हो जाएंगे तेरे कहने से। अब जब तू कह रहा है आला हजरत के फतवे से काफिर है, तो तेरे हिसाब से कौन मुसलमान है? फिर हज करने जाए कि नहीं जाए आदमी?
پھر حج کرے گا تو کہے گا وہاں نماز نہیں ہوگی، وہ تو سب دیوبندی ہیں، تو پھر کس کے بھی جو نماز ہوگی؟ ایسا ہے مناظرہ 40 دن جب وہاں رہے گا آدمی کس کے بھی جو نماز پڑھے گا؟ قربانی کہاں کرے گا؟ قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ قربانی کا گوشت کس کو دے کے آئے گا؟ وہاں سے آدمی کفن لے کے آتا ہے، کفن کیوں لے کے آ رہا ہے جب سب وہی ہیں وہاں پر؟ پھر وہاں سے کھجورے کیوں لے کے آ رہا ہے؟ وہاں سے کفن کیوں لے کے آ رہا ہے؟ وہاں پر جو ہے کہ قربانی کیوں کر رہا ہے؟ وہاں پر دفن کیوں ہو رہا ہے؟ دفن بھی انڈیا میں آ کے ہو جب حاجی مرتا ہے، جب آدمی بریلوی مرے تو کہہ دے کوئی ہمیں انڈیا میں دفن کرنا، ہمیں محمد کرنا کہ وہیں کا آدمی نماز پڑھائے گا، وہیں کا امام حرم نماز پڑھائے گا، مسجد نبوی کا امام نماز پڑھائے گا؟ یہ بتاؤ کسی بھی کلیل شریف کی مسجد میں، اجمیر شریف کی مسجد میں، یا بدائن شریف کی مسجد میں، یا جو ہے کہ دیوا شریف کی مسجد میں کوئی امام وہابی ہے، کوئی دیوبندی، کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے ان درگاہوں پر؟ اجمیر شریف میں نہ دیوبندی کی کوئی بات ہوتی، نہ بریلوی کی کوئی بات ہوتی، نہ دیوا شریف میں دیوبندی بریلوی، وہاں تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، دیوبند والوں کو اجمیر شریف میں اور بریلی والوں کو بھی یہی دیوا شریف میں ہے، وہاں پر کمیٹی دیوبند والوں کی ہے دیوا شریف میں۔ لیکن ایسا کوئی امام ہے کہ جس کے پیچھے نماز نہ ہو ان درگاہوں پر؟ یہی کہیں گے نہیں ان درگاہوں پہ سب کے سب صحیح العقیدہ سنی ہے، تو اللہ کے رسول کی مسجد میں کسی کی ہمت ہے کہ کھڑا ہو جائے کوئی بدعقیدہ؟ تم ہی بتاؤ کیا اللہ کے رسول کی مسجد میں کسی کی ہمت ہے کہ کھڑا ہو جائے کوئی بدعقیدہ آدمی وہاں پر امامت کرنے؟ تھک جائے تو بتا دیے اللہ نہیں بتاؤ اللہ کے رسول کی مسجد میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ جواب دو، کھڑا ہو سکتا ہے کوئی بدعقیدہ آدمی؟ تھک جائے تو بتا دیے۔ ارے بتاؤ بدعقیدہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ تھک گا ہو تو بتا دیے پہلے میری۔ ارے بتاؤ اللہ کے رسول کی مسجد میں کوئی امام بدعقیدہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ جواب دو پہلے۔ جب تم جیسے بول سکتے ہو تو وہاں کھڑا نہ ہو سکتا؟ یعنی تمہارا ایمان اللہ کے رسول پر بھی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول ارے شیطان ہو تم، شیطان ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔